Hello students, how are you? I hope all are fine. Students, today we are going to discuss some numericals of chapter mechanical properties of fluid. So now let us see question number first. What is the pressure on the swimmer? What is the pressure on a swimmer 10 meter below the surface of the lake? तो लेक के 10 सेंटीमीटर बिलो 10 सेंटीमीटर नीचे एक स्विमर जो है स्विमिंग कर रहा है, तो उस स्विमर की बॉडी पे कितना प्रेशर लगेगा? दैट इज फ्लूइड प्रेशर एंड वी हैव गिवन द वैल्यू ऑफ G. गिवन G is equal to 10 meter per second square and height H is equal to 10 meter, and we know that density of water, it is a standard value and it is equal to 10 to the power 3 kg per meter cube. 10 to the power 3 kg per meter cube, it is value of rho. Then the pressure of liquid column P is equal to rho G H. That is equal to rho G H plus atmospheric pressure. क्योंकि लेक जो है ऊपर से फ्री है, एंड जब लेक ऊपर से फ्री है देन उस केस में उसमें जो प्रेशर इंसर्ट होगा, एक तो लिक्विड कॉलम का प्रेशर होगा एंड एज वेल एज ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो एक्सर्ट करेगा. तो इसलिए लिक्विड कॉलम का प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड लिक्विड कॉलम का प्रेशर 10 to the power 3 into G. G is 10 into H. H is 10 into plus rho. Sorry, PA. P is the atmospheric pressure and its standard value 1.013 into 10 to the power 5. 1.013 into 10 to the power 5. Now add करो इसको. So now the 10 into 10 to the power 3 that is 10 to the power 5 plus 1.013 into 10 to the power 5. इसको लिखेंगे 1 into 10 to the power 5, दोनों को ऐड अप करेंगे then it is 2.01 into 10 to the power 5 and it is approximately equal to 2 atm pressure. It is equal to 2 atm pressure. ठीक है, मतलब जो स्विमर है वो अप्रोक्सीमेटली 2 atm प्रेशर के ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेगा या फील करेगा. सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड. The question number second के solutions. The density of the atmosphere at sea level is 1.29 kg per meter cube. Assume that it does not change with altitude. मतलब ये altitude के साथ change नहीं होता है. Then how high would the atmosphere extended? Then उस केस में atmosphere कितने height है, कितने मीटर या कितने किलोमीटर height तक हमारा atmosphere extend करेगा. So now we have given the density of atmosphere rho is equal to 1.29 kg per meter cube. Okay, now next value of G, that is equal to 9.8 meter per second square, and atmospheric pressure PA is equal to 1.013 into 10 to the power 5 Pascal, and we have to calculate the height of the atmosphere. हमें यहाँ पे एटमॉस्फेयर की जो हाइट है उसको कैलकुलेट करना है. जस्ट अ मिनट. सही है, 1.013 into 10 to the power 5 Pascal. ठीक है. Then pressure PA is equal to rho GH because
एटमॉस्फेयर में क्या है, गैसेस है, गैसेस इज अ फ्लूइड एंड फ्लूइड प्रेशर इज इक्वल टू रो जी एच, देन यहां से एच कैलकुलेट करेंगे, देन एच इज इक्वल टू पी ए बाय रो इनटू जी, देन पी ए इज 1.013 into 10 to the power 5 divided by रो is the density, it is equal to 1.29 into g is 9.8 मीटर। मीटर यहां से कुछ यूज लेना से साथ ये जाएगा आपका 101.3 into 10 to the power 3 divided by 1.29 into 9.8 into 9.8, एंड जब इससे आप इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स आएगा 8.1 into 10 to the power 3 मीटर एंड इट इज इक्वल टू 8.1 किलोमीटर। इसका मतलब है हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो 8.1 किलोमीटर के इक्वल होनी चाहिए, बट एटमॉस्फेयर की जो हाइट है वो कई किलोमीटर या कई 100 किलोमीटर तक है, बिकॉज यहाँ पे हमने जी को कांस्टेंट लेट किया है कि जी का वैल्यू कांस्टेंट है, एंड अगर जी का वैल्यू कांस्टेंट है तो उस केस में एटमॉस्फेयर की जो हाइट होगी वो कितना होगा 8.1 किलोमीटर, बट जी का वैल्यू हाइट के साथ वैरी करता है, जब जी का वैल्यू हाइट के साथ वैरी करेगा देन द हाइट ऑफ एटमॉस्फेयर विल आल्सो वैरी। इज इट क्लियर? नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, लेट अस से Question number third, an iron ball of radius 0.3 centimeter fall through a column of oil of density 0.94 gram per centimeter cube. It is found to attain a terminal velocity of 0.5 centimeter per second, 0.5 centimeter per second. Determine the viscosity of the oil. हमें ऑयल की विस्कोसिटी डिटरमाइन करना है, व्हाट इज द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, एंड नेक्स्ट पॉइंट गिवन दैट द डेंसिटी ऑफ आयरन इज 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? नाउ हियर यू कैन सी दैट एवरीथिंग इज गिवन इन एसआई यूनिट, सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर, तो एसआई यूनिट में हम डेंसिटी को भी क्या विस्कोसिटी को भी एसआई यूनिट में हम कैलकुलेट करते हैं। Then we have given the radius, an iron ball of radius 0.3. Then we have given the radius of iron ball. Radius of iron ball, small r is equal to 0.3 centimeter. 0.3 centimeter fall through a column of oil of density. Density rho is equal to given as rho. Density of oil. Density of oil is represented by sigma. That is equal to sigma, and sigma is equal to 0.94 gram per centimeter cube. Gram per centimeter cube. And next is given the terminal velocity, that is 0.5 centimeter per second. Then terminal velocity v is equal to 0.5 centimeter per second. And next given is next आपको given है iron की density given is 7.8 gram per centimeter cube. Then density of iron, that is represented by sigma. Sorry, then rho. Density of iron is represented by rho, and rho is equal to 7.8 gram per centimeter cube. And we have to calculate eta viscosity में eta calculate करना है, eta निकालना है, eta is the viscosity और eta हमें क्या करना है इसमें कैलकुलेट करना है। Is it clear? Now terminal velocity को फॉर्मूला यूज करके यहाँ पे terminal velocity v is equal to 2/9 r cube rho minus sigma r square rho minus sigma into g by eta। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला है 2/9 r square rho minus sigma into g by eta। नाउ
यहां से ईटा कैलकुलेट करेंगे तो ईटा इज इक्वल टू व्हाट 2/9 r स्क्वायर रो माइनस सिग्मा इनटू g डिवाइडेड बाय v, देन 2/9 इनटू r स्क्वायर, r गिवन है हमारा 0.3 तो 0.3 का स्क्वायर इनटू रो 7.8 माइनस सिग्मा 0.94 इनटू g 9.8 divided by velocity that is 0.5 यहां से 0 को रिमूव कर देना, यहां जाएगा 0, 5 से डिवाइड कर देना 4 आ जाएगा। देखो 0.3 का स्क्वायर 0.09 जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0.01 आएगा, कितना 0.01। देन नाउ 4 into 0.01 into इसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना तो 7.80 and 0.94 6 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 18 8 and 6 6.86 into 9.8 ठीक है। जब इसको मल्टीप्लाई करोगे सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा यहां पे सिंपली जस्ट इट इज इक्वल टू सॉरी यहां पे आप 98 क्योंकि g का वैल्यू है आपका सिंपली 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो इसको हम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे ना 980 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर हो, तो g के जगह यहां पे यूज करेंगे 980 एंड जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका आंसर आएगा 268.9 poise is the unit of viscosity, ठीक है। विस्कोसिटी का यूनिट होता है poise, ऐसा यूनिट है सीजीएस यूनिट होता है एंड ऐसा यूनिट होता है इसका डेकापोइस, ऐसा यूनिट इज डेकापोइस। क्लियर? नोट नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 now question number 4 with what terminal velocity will an air bubble of density 1 kg per meter cube and 0.8 mm in diameter rise in a liquid of viscosity 0.15 newton second per meter square and specific gravity 0.9, मतलब जो लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस इट इज बेसिकली relative density, it is relative density of liquid, that is 0.9. What is the terminal velocity of the same bubbles in a water if eta is equal to 1 into 10 to the power 3 newton second per meter square? So first of all we have to calculate the terminal velocity of air bubbles in a liquid of density this density of this air bubble की density terminal velocity will be the air bubbles of the density 1 kg per meter cube and देखो density given है density of air bubble and density of air bubble, that is rho is equal to 1 kg per meter cube and diameter is equal to 0.8 mm, then radius here 0.4 mm, then 0.4 into 10 to the power minus 3 meter and हम किसमें कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। rise in a liquid of viscosity is given as eta is equal to 0.15 newton second and meter inverse ठीक है। एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी गिवन है, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लिक्विड
देन डेंसिटी ऑफ लिक्विड, देखो लिक्विड की जो डेंसिटी होगी वो स्पेसिफिक, ये आपका सिंपली क्या दे रखा है, ये गिवन है आपका सिंपली स्पेसिफिक ग्रेविटी मींस रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी से डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू रिलेटिव डेंसिटी इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी किससे मल्टीप्लाई करेंगे, वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिक्विड की डेंसिटी आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे सिंपली रिलेटिव डेंसिटी का स्पेसिफिक ग्रेविटी इज गिवन एज 0.9 इनटू डेंसिटी ऑफ वाटर 10 to the power 3 kg per meter cube. It is value of sigma. Okay now good. देखो तो velocity हो जाएगा v is equal to 2/9 r square rho minus sigma divided by eta into g. Now 2/9 into r square radius is what, 0.4 into 10 to the power minus 3 plus square, rho is given 1 minus 0.9 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 into g is what, g is 9.8 divided by eta 0.15. Clear? Now solve out this one. देखो 2/9 into 4 का स्क्वायर हो जाएगा 60, इसका डेसिमल इसके साथ लेना पावर में, तो 10 to the power minus 4 का स्क्वायर हो जाएगा 10 to the power minus का 8, 10 to the power minus 8 into 9.8 into 1 में से इसको सब्ट्रैक्ट करो, या इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा, देखो इसको लिखेंगे 1 माइनस इसके इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 900 आ जाएगा, कितना है 900, 1 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 0.15. क्लियर? नाउ देखो अब इसको सॉल्व आउट करो, तो 2/9 into 60 into 9.8 into 10 to the power माइनस के 900 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 899 डिवाइड बाय 15 into 10 to the power माइनस करो, देखो 15 6 जा 90, 15 6 जा 90, अगर 15 6 जा 90 है देन इस केस में ये माइनस में आएगा क्वांटिटी ना, इसको माइनस करें माइनस में आएगा, तो ये 15 6 जा 90, तो ये ना 60 अप्रॉक्स में कितना जाएगा 60 अप्रॉक्सीमेट 60 आ जाएगा, एंड 9 से इसको डिवाइड कर देना तो 1.089, तो 1.09 देन वी हैव 16 to the 32 into 1.09 into 60 क्या, and 10 to the power minus 8 और माइनस का तो प्लस हो जाएगा into 10 to the power minus 6. जब इसको आप सॉल्व आउट करोगे ये वेलोसिटी आएगा करेंगे आपका 0. माइनस का 0. माइनस 0.0021 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपके वेलोसिटी, यहाँ पे नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि एयर बबल जो है वो राइज अप हो रहा है लिक्विड के अंदर, कहां जा रहा है, बॉटम से सरफेस पे जा रहा है, ठीक है। तो ये 0.002 मीटर पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट इसमें क्या है, सिंपली कि व्हाट इज द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द सेम बबल इन वाटर इफ eta is equal to 1 into 10 to the power 3, मतलब सेम बबल्स की टर्मिनल वेलोसिटी होगी अगर हम यहाँ पे विस्कोसिटी eta जो है वो यूज करें 1 into 10 to the power 3, 1 into 10 to the power 3। देखो सेम यहाँ तक आपको सॉल्व आउट होगा, ये यहाँ तक एज इट इज रहेगा। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपका फॉर्मूला यही यूज होगा, v is equal to 2 by
9r² रो माइनस सिग्मा g बाय ईटा। एंड इस केस में सेकंड केस में हम जो ईटा की जो वैल्यू है वो यूज करेंगे कितना, ईटा इज इक्वल टू व्हाट 1 into 10 to the power 3 1 into 10 to the power 3 एंड डेंसिटी ऑफ लिक्विड, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ वाटर आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वाटर में आ जाएगा तो यहाँ पे सिग्मा जो होगा वो सिंपली कहते हैं कितना आएगा 10 to the power 3। तो सिग्मा की वैल्यू यहाँ पे यूज करेंगे 10 to the power 3 यूज करेंगे 10 to the power 3। देन 10 to the power 3 means 1000। now ये 2 by 9 into इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 into 10 to the power माइनस का 8, इसमें से सब क्या करेंगे जगह 999 और ये जगह आपका 9.8 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3 डिवाइडेड बाय 10 to the power 3। ओके नाउ गुड, देखो 9 से डिवाइड करो 1.09 एंड 16 टू जा 32 into 999 into 1.09 into, देखो ये 3 जाएगा ऊपर, ये माइनस प्लस का ऊपर जाएगा माइनस का जाएगा, यहाँ पे 10 to the power माइनस का ये 2 3 11 10 to the power माइनस का 11। जब इसके आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये अप्रॉक्स जो है 10,000 के इक्वल हो जाएगा, अप्रॉक्स में हम बात करेंगे, ये 10 to the power 3 के इक्वल हो जाएगा। तो ये जो आपका सिंपली 32 into 10 to the power 32 into 10 to the power minus 3 और सॉरी प्लस का 3 और माइनस का 11 आ जाएगा। तो ये सिंपली आ जाएगा आपका जाएगा 32 into 10 to the power minus का 8 मीटर पर सेकंड। अप्रॉक्स में आपका इतना आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो ये कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में हो गए मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से। आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय।